Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm pretty sure that a lot of CLAT aspirants who could not do so well in CLAT 2025 because of so and so reasons got a decent percentile, let's say in MHCET. But uske baad bhi, you know that you might not get those top two colleges because the cutoff is quite high or the percentile requirement is quite high. So what do I do about the exams now? What do I do about my college? What do I do about my dreams? And I think for those people who have not been able to do well, this is probably some of the lowest times that you have seen, right? मतलब I'm pretty sure we're not 70 years old कि हम ये पूरा experience बता सके, but still like जितना भी हमारी अभी तक life रही है, this is a time where we feel very uncertain कि what do we do in our futures? मतलब do we even have a future? That is the question that we keep asking ourselves now. Now, in this particular session, I will try to clear that particular doubt to some extent. I will not take any decision for you, but I will try to give you certain aspects that would help you understand that this is not the end of the road. In fact, this is the starting of something extremely special. Let's try to understand this with this quick session. I will not take a lot of your time. I understand that you are not in a position to hear a lot at this point in time. You don't need any sort of preaching. बट मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा जो आपको शायद हेल्प कर सकते हैं इन एक्चुअली डिसाइडिंग एज टू व्हाट डू यू वांट टू डू गोइंग अहेड फ्रॉम हियर नाउ, राइट? तो भी आई थिंक ये कुछ थॉट्स है ना? मतलब आई एम ऑब्वियसली कांट लाइक सम अप ऑल द थॉट्स इन दिस, बस लाइक हमें कई बार लगता है कि लाइक इज माय करियर ओवर नाउ, विल आई नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड लॉयर, विल आई एवर गेट प्लेसमेंट्स बिकॉज आई हैव नॉट you could say gotten any decent college that could give me placements by far. So मेरे क्या कभी प्लेसमेंट होगा भी होगा? Will I always become an average lawyer or an average law student? Can I succeed now at all? मतलब is there a chance? बिकॉज मेरे दो बार मैंने क्लैट दे दिया है, लेट्स से, है ना, या फिर मैंने एक बार क्लैट दे दिया, एक बार एमएचसीईटी दे दिया, थिंग्स आर स्टिल नॉट वर्किंग आउट. व्हाट डू आई डू? एंड हैव आई लेट एवरीबडी डाउन? बिकॉज ये एक थॉट है जो हमारे दिमाग में आता है कि my parents had a lot of expectations from me, maybe my mentors, my friends, myself. I had a lot of expectations from myself. Have I let everyone down there? And this obviously, yaar, matlab it's natural to understand or natural to believe in these things at this point in time, because sometimes you have hit that particular low that you do not know what to do next. Let's explore some options for you and let's understand कि क्या वो practical options हो सकते हैं जो आप actually explore कर सकते हो going from here. Now, first practical aspect is getting a good private college. अगर आपको कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, चाहे वो एसएलएस के मतलब जो दो मेजर कॉलेजेस है, विच इज पुणे एंड नोएडा, अगर आपके पास वो ऑप्शंस है ना, अगर आपके पास लेट्स से विप्स एक ऑप्शन है, तो विप्स इज कंसिडर्ड अ डिसेंट कॉलेज, नॉट अ वेरी गुड कॉलेज बट ओके कॉलेज, ठीक है? तो दैट्स समथिंग दैट यू कैन कंसिडर. निर्मा यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, दैट्स समथिंग यू कैन कंसिडर, राइट? तो अगर आपको एक अच्छा डिसेंट प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग वो ले सकते हो. अगर आपका क्लैट में फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप ये लेकर साथ साथ पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो. अगर आपका क्लैट में ड्रॉप ईयर अटेम्प्ट था तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो प्राइवेट कॉलेजेस ले लो, अगर आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं तो, ठीक है? एंड लाइक लेट्स से मनी इज नॉट अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, ओके? अगर आपका फर्स्ट ईयर ड्रॉप था या फिर आपने 12th इसी साल दिया है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट अ पार्शियल ड्रॉप टू यू गाइज. अगर आप ये बिलीव करते हो दैट आई हैड मेड सर्टेन मिस्टेक्स, it is on me, not on the examiner, not only on the exam, but it is on me. I did certain things wrong and I want to rectify them in the whatever 5-6 months I've left. And I इतना ही टाइम चाहिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज अगर ये अच्छी बात ये है इस चीज की कि अगर पूरा एक साल होता ना तो वो इतना बड़ा टाइम है कि वी डोंट वांट टू कमिट आवरसेल्व्स फॉर एन एंटायर ईयर एंड गो थ्रू दैट ड्रिल अगेन एंड अगेन. तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि एक पार्शियल ड्रॉप लिया जा सकता है विद अ डिसेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो. कई सारे स्टूडेंट्स, अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है एंड वी जस्ट टेकिंग दैट, दैट्स आल्सो ओके, ठीक है? कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद लग सकता है कि इफ वी टेक अ कॉलेज वी माइट नॉट बी एबल टू वर्क टू द 100% ऑफ आवर पोटेंशियल, बिकॉज फिर हमें कॉलेज जाना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज होगी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दैट विल टेक सम ऑफ आवर टाइम, एग्जाम्स होगी कॉलेज के. आई वुड सजेस्ट अ फुल ड्रॉप ईयर, बिकॉज पूरा ड्रॉप ईयर बोलने की बात है, अभी हमारे पास आधा ड्रॉप ईयर ही बचा है ना? वी कांट टेक अ फुल ड्रॉप ईयर एनीवे बिकॉज हमारा एग्जाम अगले 6 महीने से कम में. तो इसीलिए फुल ड्रॉप ईयर इज समथिंग व्हिच बेसिकली मींस दैट यू हैव नो बैकअप पर से. तो बट मेरा ये मानना रहता है कि इफ यू हैड ऑलरेडी टेकन अ ड्रॉप ईयर एंड यू आर अगेन कंसिडरिंग कि मतलब मैं एक ड्रॉप ईयर लेकर ट्राई करता हूं या करती हूं एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट,
प्लीज टेक अ बैकअप। आप कुछ भी बैकअप ले लो, चाहे मतलब द बैकअप नीड नॉट बी लॉ ऑल्सो, आप बीए ले लो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपकी स्ट्रीम को प्रेफर करता है वो ले लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी एक ड्रॉप ईयर लिया था और अगर आप फिर ले रहे हो, एक बैकअप जरूर लेना। और एक लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि मतलब आई हैव लॉस्ट ऑल माय होप्स इन माय लाइफ, आई विल टेक एडमिशन इन व्हाटएवर आई गेट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं हर साल करते हुए देखता हूँ। गाइस ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको लग रहा है कि यार घर से निकले, कॉलेज जाएं, थोड़े मजे करें, थोड़ी पढ़ाई करें, मेहनत कर लेंगे, सब सेट हो जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो 6 महीने एक एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने की वजह से हम कई बार थोड़ी चीजों में फिर पीछे रहते हैं, बिकॉज द कॉलेज दैट वी गो टू माइट नॉट हैव द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी वुड रिक्वायर टू डू वेल, है ना। मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास पीपल, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स दैट थिंग्स कि हमें 1000 जगह से हम एक्सपोजर ले लेंगे, हम एक्सचेंज में किसी XYZ फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहां पर 6 महीने पढ़ के आएंगे। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, लेट्स से, है ना। वो सब प्रिविलेज अभी फिलहाल हमारे पास शायद नहीं है, राइट। और इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जेन्युइनली अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो और खुद को कन्विंस कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन यू शुड टेक ईदर अ पार्शियल और अ फुल ड्रॉप ईयर इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको गुड प्राइवेट कॉलेज मिलता है, डेफिनेटली लाइक कंसिडर दैट, गो देयर, यू कैन डू वेल इन दोस पर्टिकुलर कॉलेजेस बिकॉज दे हैव लाइक द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट यू रिक्वायर, राइट। नाउ फॉर दोज हु आर फीलिंग रियली रियली लो, please understand this, that nobody is a failure guys, genuinely nobody is a failure. This actually is the, you could say, ऐसा कई बार होता है कि better things are waiting for you. So I'll tell you a little bit of story, like जो मेरी खुद की एक स्टोरी है, जो मेरी वजह कह सकते हो कि something that you can draw inspiration from थोड़ा सा। तो मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि अरे पॉजिटिव कोट्स एंड ऑल। तो when I was in 12th standard, I wanted to go to Delhi University. I wanted to go to SRCC, Sriram College of Commerce, right? सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है बस क्लियर, मैंने और कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया साथ में। आई वाज लाइक उस टाइम के 12th के एग्जाम से होता था सिलेक्शन, तो आई वाज लाइक कि आई विल गेट टू 12th में एकदम टॉप रैंक एंड दिस एंड दैट दिस एंड दैट। तो मैंने 12th में अच्छी खासी पढ़ाई करी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ 12th में दैट SRCC's कट ऑफ वाज 97.5 लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर, माय परसेंटेज वाज 95। 97.5 और 95 में बहुत फर्क था, है ना। अब यार आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन एट दैट टाइम कि मैं क्या करूंगा लाइफ में। ये जो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मेरे दिमाग में आ रहे थे उस टाइम कि मेरा करियर ओवर हो गया है क्या, एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस टाइम मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि दैट 18-year-old मी ऑलवेज फेल्ट कि यार मतलब आई विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, मेरा कुछ भी हो नहीं पाएगा, है ना, मैं क्या करूंगा। बट देन आई वुड नॉट हैव बीन टॉकिंग हियर had I gotten 97.5 or 98 percentage, right? We would have not have been interacting, we would not have been discussing, because मैं SRCC चला जाता, my career path would have changed entirely, right? So sometimes better things are waiting for you. I'm extremely happy that I went to NLU Jodhpur and not SRCC, right? I mean, मैं ऐसे कोई diss नहीं कर रहा किसी college को, but I'm just saying कि I got to go to a great college with great exposure and professional degree. So that's something that I really really cherish now. अगर मैं पीछे देखता हूँ 10 years down the line कि भाई मतलब मैं वो क्या सोच रहा था उस टाइम पर, एंड यू नो व्हाट व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड, मेरे को जेन्युइनली मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस वाज ऑन ऑल टाइम लो 95% के बाद 12th में, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इट्स वेरी नेचुरल, यू नीड सम टाइम टू हील दीज थिंग्स, बट द सेम टाइम यू नीड टू मेक दोज एफर्ट्स। आपको वो छोटे छोटे एफर्ट्स अपने एंड से भी डालने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगेन, you need to be mindful of what mistakes did you commit there, or can you resolve those mistakes? Do you have that resolve in you to resolve those mistakes? That's a very important thing here. तो वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। And can you give one last full blown attempt? अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट आपको लगता है जो आपने पिछला दिया था वो एक फुल ब्लोन नहीं था, उसमें आपने स्टार्टिंग स्टेज में गलतियां की थी कि आपने रेगुलर नहीं थे, आप लास्ट में आके रेगुलर हुए लास्ट के 2-3 महीनों में, तो वो जो गलतियां है ना उसको सॉर्ट आप इस साल जरूर कर सकते हो। तो थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ कंपल्जन एंड इट्स नॉट समथिंग दैट करना ही करना है, बट दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख सकते हो। जो चीजें हो गई, दोज थिंग्स वी कांट चेंज। तो अगर उसमें बहुत ज्यादा परेशान होंगे और बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है इस पॉइंट पे, तो शायद we are wasting our own time, we are, you could say, making things difficult for our own selves. Doesn't make sense, right? तो अगर आपको कोई भी और डाउट होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, I'll be happy to take it from there and answer it for you. Ideally a career related doubt where I understand some of you have not been able to do well and would want to understand what do we do ahead now. ठीक है? If you want to study from us, from 12 minutes to CLAT, we have launched a latest batch for CLAT and ALET 2026. It's called Uddeshya Plus and Uddeshya. दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस राइट अवे, वेरी अफोर्डेबल। यू कैन यूज माय कोड मालपानी टू गेट मोर डिस्काउंट्स ऑन दिस बैच, ठीक है।
उसके अलावा हमारी एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वी विल डिलीवर दीज मॉक्स टू योर हाउसेज विद OMRs एंड एवरीथिंग, तो आप लोग प्रॉपर्ली अच्छे से क्लैट तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। इफ यू टेक द उद्देश्य प्लस बैच, यू डोंट नीड द ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज अलग से, बिकॉज दैट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज अ पार्ट ऑफ द बैच along with the books, the study material as well. ठीक है? So that's it about this particular session. इन numbers पर आप लोग contact कर सकते हो कभी भी. My team will get in touch and they will be guiding you with respect to everything. If you want to talk about our batch, want to talk about the upcoming exam or anything related to the preparation, we'll be very, very happy to guide you and try to help you out to come out of this zone and get to a zone where you really start believing in yourself again, right? Visit 12minutes2clad.com, download 12 minutes to clad का app from Google Play Store or App Store, and we'll be happy to guide you till the end of the preparation. Keep smiling, keep working hard. There are so many opportunities that are going to come from here for you. Just keep an eye for them, and I'm pretty sure things will get sorted out. इस पॉइंट पे शायद लग नहीं रहा होगा, इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि ये ठीक है, सबको ऐसे बोलता है ना? लेकिन I am 100% sure. I have been through what you guys are going through at this point in time. Don't worry, things will certainly work out if you work hard. Okay, all the best, guys.